Afternoon to all of you. The students, today we will study the preservance of cross ratio under the bilinear transformation. So this is the most important theorem. So this theorem states that let W1, W2, W3 and W4 be the images of four distinct points, that is Z1, Z2, Z3 and Z4 in the Z plane under a bilinear transformation, that is W is equal to T of Z and this is equal to AZ plus B divided by CZ plus D, provided the determinant should be not equal to 0, that is AD minus BC is not equal to 0. Then the cross ratio of these 4 points, that is W1, W2, W3 and W4, this is equal to the cross ratio of these points, that is Z1, Z2, Z3 and Z4. So we know that we represent the cross ratio by this formula, that is W1 minus W2 divided by W2 minus W3, then into W3 minus W4 divided by W4 minus W1. And we have to show that this cross ratio is equal to this cross ratio, that is Z1 minus Z2 divided by Z2 minus Z3 and Z3 minus Z4 divided by Z4 minus Z1. So basically, in short, I will tell you that we have to find these differences. If we find these differences and then substitute in this equation, we get the corresponding cross ratio in the Z form. So here, let us take, I will write here, let us take a bilinear transformation W, this is equal to T of Z and this is equal to AZ plus B divided by CZ plus D. So where the determinant, that is AD minus BC, this should be not equal to 0. So name it as equation number first. So since W1, W2, W3, W4 are the images of the points, Z1, Z2, Z3 and Z4 respectively, we have, so this means W is equal to, we know that W is equal to T of Z, okay. So then W1 is the image of point Z1. So here I can write it as that W1, this is equal to T of Z1. Similarly, W2, this is equal to the image of Z2 point, that is T of Z2. Then similarly, W3 is equal to image of the point Z3 and W4, this is equal to the image of the point Z4. So these transformations, that is W1, W2, W3 and W4, these are same bilinear transformation as shown in the equation number 1. So we can write here. So W1 is equal to T of Z1 and this is same as like the bilinear transformation shown in equation first, that is A times Z1, that was A Z plus B divided by C Z plus D. So instead of Z, I will write here now Z1. So A Z1 plus B divided by C Z1 plus D, provided AD minus BC should be not be equal to 0. Similarly, W2 is equal to T of Z2 and this is equal to A times Z2 plus B divided by C times Z2 plus D. Then W3 is equal to T of Z3 and this is equal to A times Z3 plus B divided by C times Z3 plus D. And W4, this is equal to T times Z4 and this is equal to A times Z4 plus B divided by C times Z4 plus D. Now what I have to find, I will find the difference of these two transformations, like W1 minus W2, then I will find the value of W2 minus W3. After that, I will find the value of W3 minus W4, and at last I will find the value of W4 minus W1. And after finding the values of all these transformations, I will substitute these in the equation and equation A. So A is basically, equation A is, this is our equation A.
So after substituting these values in equation A, we get the cross ratios in Z form. So I will write here now. सो सिंपली अब हमें ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है इनका डिफरेंस निकालना है और वापस इक्वेशन जिसको मैंने ए कंसिडर किया है उसमें इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्रॉस रेशो की वैल्यू मिल जाएगी किसमें, जेड फॉर्म में, मीन जेड के पॉइंट्स में मिल जाएगी. सो W1 माइनस W2 किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल है ये. W1 ट्रांसफॉर्मेशन था A ऑफ Z1 प्लस बी डिवाइडेड बाई C ऑफ Z1 प्लस डी. इसका सब्ट्रैक्शन लेना है W2 के साथ, ये हो जाएगा A ऑफ Z2 प्लस बी डिवाइडेड बाई C ऑफ Z2 प्लस डी. तो सिंपली इसका एलसीएम निकालेंगे. सो एलसीएम से हमारे पास आएगा C ऑफ Z1 प्लस डी, देन यहाँ से आएगा C ऑफ Z2 प्लस डी. सो डिनोमिनेटर ये आ गया और अब न्यूमरेटर में आएगा A ऑफ Z1 प्लस बी, देन देन C ऑफ Z2 प्लस डी. मैंने पहले ही इसका मल्टीपल कर दिया. देन माइनस ये आ जाएगा यहाँ से A ऑफ Z2 प्लस बी और यहाँ से आ जाएगा C ऑफ Z1 प्लस डी. सो फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू, आई विल राइट हियर. सो दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास AC टाइम Z1 Z2, मल्टीपल दे रही हूँ मैं इसके अंदर. फिर आएगा आपके पास AD Z1 प्लस BC Z2 देन प्लस BD. देन नेक्स्ट टर्म विल बी माइनस AC Z1 Z2 then minus times CB Z1 then minus DA Z2 and last में आएगा minus DB and whole divided by C Z1 plus D then C times Z2 plus D. सो यहाँ से क्लियरली हमारे पास माइनस डी बी और ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म में था ये बी डी, ये भी कैंसिल हो जाएगा. ये ए सी Z1 Z2 और ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास बच जाएगा सिर्फ AD Z1 प्लस BC Z2 देन माइनस टाइम CB Z1 देन माइनस DA Z2 होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा C टाइम्स Z1 प्लस D देन ये आ जाएगा C टाइम्स Z2 प्लस D. सो दिस इज Z2. सो यहाँ से हम देखेंगे कॉमन क्या आ जाएगा न्यूमरेटर से. सो अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा Z1 वाली टर्म से Z1 कॉमन आ जाएगा. ये हमारे पास आ जाएगा AD माइनस BC. इसी तरीके से यहाँ से माइनस Z2 कॉमन आ जाएगा तो AD माइनस BC आ जाएगा. देन होल डिवाइडेड पे आ जाएगा आपके पास C टाइम्स Z1 प्लस D एंड C टाइम्स Z2 प्लस D. सो फ्रॉम हियर AD माइनस BC को भी कॉमन निकाल सकते हैं तो यह आ जाएगा AD माइनस BC और ब्रैकेट में आ जाएगा Z1 माइनस Z2 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास C टाइम्स Z1 प्लस D देन यह आ जाएगा C टाइम्स Z2 प्लस D. सो नेम इट एज इक्वेशन सेकेंड. सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया. सो सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब W2 माइनस W3 भी निकालेंगे और W2 माइनस W3 मीन्स A टाइम्स Z2 माइनस प्लस B डिवाइडेड बाई A टाइम्स Z2 प्लस D C टाइम्स दिस इज C. सो ये आ जाएगा C टाइम्स Z2 प्लस D. इसको सब्ट्रैक्ट करना है A टाइम्स Z3 प्लस B होल डिवाइडेड बाई C टाइम्स Z3 प्लस D. सो जब हम इसको फर्दर सेम प्रोसीजर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ से हमारे पास वैल्यू यही इस फॉर्म में ही आएगी AD माइनस BC. यहाँ पे हो जाएगा Z2 माइनस Z3 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा C टाइम्स Z2 प्लस D एंड C टाइम्स Z3 प्लस D. एंड सिमिलरली W3 माइनस W4 जो होगा दिस विल बी इक्वल टू A टाइम्स Z3 प्लस B डिवाइडेड बाई C टाइम्स Z3 प्लस D माइनस A टाइम्स Z4 प्लस B डिवाइडेड बाई C टाइम्स Z4 प्लस D. एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास आएगा AD माइनस BC देन ये आ जाएगा आपके पास Z3 माइनस Z4 होल डिवाइडेड पे आ जाएगा C टाइम्स Z3 प्लस D और ये आ जाएगा C टाइम्स Z4 प्लस D. सो लास्ट टर्म इज दैट इज W4 माइनस W1 और वो हमारे पास आएगा AZ4 प्लस B डिवाइडेड बाई CZ4 प्लस D माइनस AZ1 प्लस B डिवाइडेड बाई CZ1 प्लस D. सो फर्दर सिंप्लीफाई के बाद आएगा AD माइनस BC, इट विल बिकम Z4 माइनस Z1 देन होल डिवाइडेड बाई
C टाइम्स Z4 प्लस D एंड ये आ जाएगा C टाइम्स Z1 प्लस D. So name it as equation third, equation fourth and equation fifth. So substituting all these equations in equation number A. So using all these values in A we get तो हम A में पुट करते हैं. सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, W1 माइनस W2 होल डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा W2 माइनस W3. यहाँ से आ जाएगा आपके पास W3 माइनस W4 देन डिवाइडेड बाय W4 माइनस W1. सो दिस इज इक्वल टू, सो W1 माइनस W2 की वैल्यू हमने निकाली थी AD माइनस BC, देन इसको ब्रैकेट में था, देन Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय ये हुआ हमारे पास C टाइम्स Z1 प्लस D एंड C टाइम्स Z2 प्लस D. सिमिलरली हमारे पास जो W3 माइनस W4 की वैल्यू थी वो थी AD माइनस BC, देन यहाँ पे आएगा Z3 माइनस Z4 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास C टाइम्स Z3 प्लस D एंड C टाइम्स Z4 प्लस D. सो होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास W2 माइनस W3 दैट इज़ AD माइनस BC, देन यहाँ पे आ जाएगा Z2 माइनस Z3 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा C टाइम्स Z2 प्लस D, C टाइम्स Z3 प्लस D एंड यहाँ से आ जाएगा AD माइनस BC और लास्ट टर्म आ जाएगा यहाँ पे Z4 माइनस Z1 देन होल डिवाइडेड बाय W4 माइनस जो इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट था दैट वाज C टाइम्स Z4 प्लस D एंड C टाइम्स Z1 प्लस D. सो हम यहाँ से देखेंगे कि सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या पार्ट रह जाएगा, एक ये पार्ट रह जाएगा, एक ये पार्ट बच जाएगा, एक ये वाला पार्ट और एक ये पार्ट, क्योंकि AD माइनस BC ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा. सो हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन बच जाएगी दैट विल बी इक्वल टू Z1 माइनस Z2 देन डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z3 then into Z3 minus Z4 divided by Z4 minus Z1. सो यहाँ से हमने क्या शो कर दिया कि दैट जो क्रॉस रेशोज हैं वो क्या कर गए, प्रिजर्व कर गए. सो बिकॉज ये दोनों इक्वल आ गए, सो हेंस प्रूव्ड. थैंक यू.